Good morning, students. Today we are going to discuss our second chapter, that is forms of business organization, and in this lecture we continue the partnership concept. Now today our topic is formation of partnership firm. How it can be formed? Partnership firm, how it can be formed? A partnership firm is formed when two or more persons enters into an agreement to form a partnership firm. Is it clear? Two or more person enters into agreement. Now what is the concept of agreement? Agreement can be written or oral. In agreement all the terms and conditions are mentioned. Is it clear? Agreement सब जानते हो ना क्या होता है agreement, जिसमें जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जब वो एग्री कर जाते हैं. एग्रीमेंट दैट मीन्स एग्री. वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे एग्री कर जाते हैं. पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट. दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ऑरल, बट मोस्ट ऑफ द फर्म प्रेफर द रिटन एग्रीमेंट बिकॉज रिटन एग्रीमेंट इज अ प्रूफ. इज इट क्लियर ना? ऑरल एग्रीमेंट में हमने कुछ डिसाइड किया, उसके बाद अगर उसमें से कुछ पार्टनर्स ने मना कर दिया तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा. बट अगर हमने रिटन एग्रीमेंट लिखा है तो रिटन एग्रीमेंट में क्या है कि प्रूफ है, उसमें सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है, तो दैट इज द प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Anyone partner cannot be denied by their own agreements. कोई भी डिनाई नहीं कर सकते अपनी चीजों से. तो दैट मीन्स दिस इज द एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट मोस्टली एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म to avoid disputes among the partners. Now what is the concept of partnership deed? Partnership जब start किया था तो partnership deed के बारे में आपको बताया था. Partnership deed is a written agreement in which all the partners agreed. That is known as partnership deed. In partnership deed, terms and conditions are mentioned, that is signed by all the partners in partnership firm. Partnership, it is a stamp paper on which rules, regulations and terms and conditions are mentioned in written form. That is known as partnership deed. Is it clear na? Partnership deed is the important document of partnership firm. सबसे important document हमारा partnership deed है. इसमें सारे rules, regulations, हमारे terms and conditions, partners ये क्या है, किसी पार्टनर को, ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना है, किसी नए पार्टनर को, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम बेटा पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर ले, मतलब रिटन फॉर्म में हो जाते हैं और सारे पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं. इससे बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अपनी बातों को डिनाई नहीं कर सकता. ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज पे एग्री नहीं हुआ था, बिकॉज partnership deed is signed by all the partners in partnership firm. Is it clear? So partnership deed is the most important document of partnership firm. अब कंसेप्ट ये आता है कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो मेंशन होते हैं. कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लाइक नेम ऑफ फर्म. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्म? नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. नेचर ऑफ बिजनेस, द पार्टनर्स like trading, manufacturing, which kind of business, that is mentioned in the partnership firm. Place of business, that means where is the head office of partnership firm. Capital contributed by each partner, how much capital is contributed by each partner, that is decided in partnership deed. Next is profit sharing ratio, that means in which ratio they can be distributed, they can distribute their profit, that is decided in as that can be decided as earlier. If profit sharing ratio is not decided, then they distribute the profit equally. Rights and duties of partners. What is the rights and duties of partner? Rate of interest. Rate of interest, how much rate of interest, in interest on capital, interest on drawing, all the points are decided as earlier. द अमाउंट ऑफ सैलरीज, कि हर पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया. उन्होंने हो सकता है कि 5-6 एम्प्लॉइज अपनी फर्म में रख लिए हों वर्क करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, उनको सैलरीज भी देंगे. उसके बाद अमाउंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ सैलरी. और बेटा इसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि इन केस
कोई नया पार्टनर एंटर करना चाहता है तो ऑन विच कंडीशन ही कैन बी एंटर्ड, क्या कंडीशंस होंगी, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे, और इफ एनी ऑफ द पार्टनर वांट्स टू लीव द पार्टनरशिप फर्म देन व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे पॉइंट्स को इसमें मेंशन कर लिया जाता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है तो क्या कंडीशन है, कैसे, क्या कोई पार्टनर अपना शेयर किसी पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, उसमें से एक पार्टनर कहते हैं कि मुझे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना है बेटा, तो वो मतलब क्या अपनी जगह किसी और पार्टनर को दे सकता है, दे के जा सकता है या नहीं, या फिर वही छोड़ के, दैट मीन्स की व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे के सारे पॉइंट्स पहले से मेंशन कर दिए जाते हैं ताकि बाद में किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इज इट क्लियर? जितने भी पॉइंट्स हैं, नए पार्टनर को एंटर करना, डिसोल्यूट करना, किसी पार्टनर को क्या अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं इन बेटा, और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फर्म की पार्टनर हूं, तो मैंने क्या किया, 10 लाख का लोन दे दिया। अब लोन एज ए पार्टनर मैंने दिया है, अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को दिया है, तो मैंने लोन दिया, मैं उस टाइम पे मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, ये सारी चीजें पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर हम लोन दे सकते हैं। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो मैं उस फर्म को लोन दे सकती हूँ, बट मुझे उस लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये चीज मेरी पहले ही डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस अगर कोई फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है तो कोई पार्टनर किसी चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्म को लोन दिया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, हम लोगों ने नहीं बनाई, बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, तो फिर मुझे सिर्फ मेरे लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% ही मिलेगा, और मैं इससे ज्यादा के लिए डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूल है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मेंशन है तो सिर्फ 6% मिलेगा, और इससे ज्यादा के लिए कोई पार्टनर डिमांड नहीं कर सकता। आपको इससे ज्यादा चाहिए तो वो आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लो, दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। इसीलिए कहा कि पार्टनरशिप डीड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वहां पे सैलरी नहीं लिखी है, हमने हमने रेशियो नहीं डिसाइड किया है कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कोई भी पार्टनर डिमांड नहीं कर सकता, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वल बटेगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, और कोई पार्टनर डिमांड भी नहीं कर सकता। इसलिए पार्टनरशिप डीड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्यों, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी नहीं है, बट क्यों इसको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कराती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। वैसे इसका बेटा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट व्हाट आर द कंसिक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई फर्म अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराती तो क्या कंसिक्वेंसेज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी केस फाइल अगेंस्ट अनदर पार्टनरशिप फर्म। अगर वो केस नहीं कर सकता किसी अनरजिस्टर्ड, वो पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का किसी अनदर पार्टनरशिप फर्म जो वो भी ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, उसके अगेंस्ट कोई केस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फर्म का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम किस बेसिस पे केस फाइल करेंगे। हमारा बिजनेस लीगली कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम केस फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड इज, कोई भी अगर पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो दैट कैन नॉट बी केस फाइल अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। पहला हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पार्टनर अगर अनरजिस्टर्ड फर्म का है कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अनदर पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। कोई अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है, उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हम नहीं कर सकते। थर्ड वन इज, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी ऑफ आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी थर्ड पर्सन को सेल किया हुआ है, मेरी फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब वो जिसको मैंने सेल किया है वो थर्ड पार्टी है, कोई और बिजनेस है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे उससे पैसा लेना है 5 लाख, मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ? ना तो मेरी फर्म रजिस्टर्ड है, ना वो थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जो अनरजिस्टर्ड फर्म है कैन नॉट बी फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अनदर ऑफ पार्टनर। जैसे हम
5 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, हमारी फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, हम तो किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि मेन कंसिक्वेंसेस क्या है बेटा कि अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है वो किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती, चाहे वो पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई थर्ड पार्टी है या फिर पार्टनर है। हम दैट मीन्स कि वी आर लीगली इनवैलिड, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर partnership firm, partner or third party. That is the concept. That's why in partnership all partners wants to register their firm. Is it clear? अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो लीगली वैलिड नहीं है, लीगली एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर लीगली एग्जिस्ट नहीं करती है फर्म तो हम किसी भी पार्टनरशिप के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये बेटा जरूरी होता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? क्या प्रोसीजर है, किस तरह से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड किया जाता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी फर्म को रजिस्टर्ड कराना है तो रजिस्ट्रार के पास, उस पर्टिकुलर एरिया में रजिस्ट्रार के पास हमें अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास हम जब फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमें फॉर्म देगा। वो फॉर्म का फॉर्मेट, उसमें क्या क्या होगा बेटा? नेम ऑफ फर्म, प्रिंसिपल प्लेस मीन्स हेड ऑफिस ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, वो 3-4 जगह उनका चल रहा है, बट हमें जो रजिस्ट्रेशन कराने में एड्रेस देना है वो प्रिंसिपल प्लेस का देना है, दैट मीन्स हेड ऑफिस ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। थर्ड वन इज नेम ऑफ एनी अनदर प्लेस वेयर फर्म विल बी कैरी ऑन बिजनेस, और इन केस अगर कोई और फर्म प्लेस है तो वहां का भी डेट ऑफ एडमिशन, name and permanent address of all the partners in partnership firm, 6 year duration of firm, that means time period of particular firm. After the submission of all these details to the registrar verify all the details. If registrar agree with detail, that means all the details are true, then firm is registered and provide certificate for the partnership firm. Is it clear? रजिस्ट्रार सब चीजों को वेरीफाई करेगा, दैट मीन्स ऑल द डिटेल्स आर ट्रू, और दैट मीन्स आफ्टर वेरिफिकेशन इफ रजिस्ट्रार इज agreed, if registrar is satisfied, then he can issue the certificate of partnership firm. Is it clear? Now after the certification, firm is legally valid. It can be a file case against any another of the partners, partnership firm. That means it is legally valid to take any legal action. Now what is the difference between, this is the concept of partnership firm. Now what is the difference between partnership firm and sole proprietorship? First is governed by, partnership firm is governed by Indian Partnership Act 1932, and sole proprietorship, there is no separate act for the sole proprietorship firm. Number of members in partnership firm, minimum number of member is 2 and maximum is 20 in ordinary business. In sole proprietorship only one member can start a business. Third is basis of formation. Partnership deed is the basis of formation in partnership firm, and in sole proprietor there is no need of any agreement because a single person can start a business. Fourth one is risk. Risk in partnership, risk is beared by all the partners. In sole proprietorship firm only one person can bear the risk. Finance. In partnership there is larger resource of finance, but in case of sole proprietorship there is a smaller resource of finance because only one person starts a business in sole proprietorship firm. Decision making in partnership firm, the decisions are taken by all the partners, that means in the agreement of all the partners, but in sole proprietorship only individual takes the decision of their business. Now this division of profit in partnership firm, profit is distributed in all the partners, and in the case of sole proprietorship profit is shared by only one individual. That is the difference between partnership and sole proprietorship. Now next is difference between partnership and joint Hindu family business. बेटा हम पहले पार्टनरशिप को भी डिस्कस कर चुके हैं और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. एंड डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बेटा अगर आप डिफरेंस को समझ लेते हो तो आपको जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है.
तो governed by, partnership firm is governed by the partners in the firm, and joint Hindu family it is governed by the karta, that is senior most member of the family. For the partnership there is separated, that is Indian Partnership Act 1932, and in joint Hindu family it comes under the Hindu Succession Act. Number of members in partnership, minimum number of member is 2 and maximum in 20 in ordinary business, and in case of joint Hindu family business there is no limit, that means minimum two male members, so there is no limit of the maximum number of partners. Third one is male or female. In partnership only male members can start a business, but in case of joint Hindu family business male or female both can be the member of business. But हमने बेटा पढ़ा था कि जो हमारा पहले जो joint Hindu family business था, in that case female cannot be a member of joint Hindu family business, but December 2004 after there is lots of amendment in the Hindu Succession Act, that means in the amendment there is a main focus on to remove the discrimination between son and daughter, that means a female can be a member of joint Hindu family business. Is it clear? Now liability. In the partnership firm the liability of all the partner is unlimited, but in case of joint Hindu family business the liability of all the member is limited to extend their share, but the liability of karta is unlimited. Now division of profit. In partnership firm profit is shared by all the partners, that ratio is already decided in partnership deed. In joint Hindu family business the main profit is in the hands of karta, that is senior most member of the family, and karta is divided the profit among the other family members of business. Minor. In partnership firm minor cannot be a partner in partnership firm, but in the case of joint Hindu family business a minor can be a partner in joint Hindu family business. A child by birth become the member of joint Hindu family business. That is the concept of joint Hindu family business, partnership and sole proprietorship. इस चैप्टर में हमने अभी तक बेटा 3 कंसेप्ट को डिस्कस किया. सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स सिर्फ एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है. बहुत सारी लिमिटेशंस थी, रिसोर्सेज कम थे, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द रीड द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देयर कैन बी 2 और मोर मेंबर्स कैन बी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फिर हमने डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दैट इज अवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. तो हमने बेटा ये तीनों कंसेप्ट, चारों कंसेप्ट की और 4 के 4 कंसेप्ट में हमने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया. दैट इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. होप सो पार्टनरशिप सबको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू बेटा.